नमस्कार, हम हैं नीता कुमार, आपकी स्कूल की डायरेक्टर। मैं जयंती, नमस्ते। हम लोग आज आपके सामने इसलिए आए हैं कि हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ एक वर्कशॉप टाइप का काम करना चाहिए, जिसमें जो हमको मालूम है आपके बहुत सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। We think that you have some doubts and questions because of the present time when the children are with you 24 hours. So we are here today to talk about a few of these questions. So first of all, जयंती आप बताएंगी कि हम लोग जैसे स्कूल में बनाते हैं ना पूरे दिन की दिनचर्या, उसका घर में किस तरह से कोई लाभ हो सकता है? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि यदि हम घर पे भी टाइम टेबल बनाएं और बच्चों को पता हो कि उनको किस समय नाश्ता करना है, कब उनको नहाना है, कब फ्रेश होना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, वो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप एक बार बनाएंगे और बच्चों को उसको समझाएंगे तो बच्चे उसको फॉलो करके बहुत अच्छे से सब काम को करेंगे और उसमें आपका भी ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं जाएगा कि तुम्हें ये करना है। उनको बताइए और वो उसी को फॉलो करके करें। तो टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग बनाइए प्लीज। Yes, I mean, just to sum it up, as Jayanti said, we can't have a perfect timetable like in school, but it's nice to have a schedule for the day so that the children know what to expect, and you can also thereby control things like TV viewing and internet and phone use and so on. So be very particular about that. And joined to that is the question of making a space for the child. Yes. Even if it's a very small space, please try to make it separate so that the child feels ownership of that. The child has some privacy. The child knows if I go there, my things are safe, I can sit there when I like, do what I like, and so on. यस, दिस इज ए वेरी, ये बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को यदि कोई भी आपके पास एक ही कमरा है, उसके लिए वहाँ पे सुरक्षित जगह बनाइए जहाँ पे उसके सभी सामान हो, उसका खेलने का भी सामान हो, पढ़ने का भी सामान हो, जिसको लगे कि वो उसी का है, उसकी क्लीनिंग भी उसी को करने के लिए लगाइए, जिससे वो पढ़ाई भी करे, अपने जब भी वो महसूस करे वो अपने स्थान पे जाके पढ़ाई करे, बैठे, खेले, कुछ भी करे। तो प्लीज एक बच्चों के लिए अच्छा सा स्थान घर में ही बनाए। Together with that is also our next point, which is that the child should participate actually in the work of the whole house. Alright, this has many advantages. So I'll just mention one or two and then Jeffrey will explain the others. One is that the child will actually help you. Will actually help you. You have to do a lot of work, especially the mothers have to do a lot of work, right? It includes all kinds of work in the house. Well, it's actually very good for the child to work with you. You'll finish your work and you'll be able to give attention and time to the child who is helping you as your little assistant. So make him or her your assistant, give him that kind of title and make it very clear what is the work and when it has to be done. बच्चों के लिए घर में हमेशा उनके लिए घर के से संबंधित भी काम होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब इस काम को तुम्हें नहीं करना, ऐसा कैटेगरी प्लीज मत बनाएं। हर काम में बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, जिससे बच्चे भी बहुत से उन सब कामों से उनके अंदर जिम्मेदारियां का एक सीख मिलती है और वो अपने परिवार के हर सदस्यों के लिए बहुत ही जिम्मेदार बन जाते हैं, बहुत सीखते हैं। ये बहुत ही अच्छी सीख होती है। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि सब लोग बच्चों को भी अपने हर काम में इन्वॉल्व करें। There is something called motor skills, and there are gross motor skills which you develop when you play outside in the playground, especially with balls and with using your hands in different ways. But there are fine motor skills, and believe it or not, by working in the kitchen, by doing cleaning up kinds of jobs, children, especially at the primary school age, are working on their fine motor skills, and this is all very good for academics. Their writing will improve, their comprehension will improve, every single kind of skill in subjects will improve through working with their hands. तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिए, ये ना सोचिए कि एकेडमिक्स एक तरफ है और बाकी सब काम एक तरफ है। एक्चुअली बाकी सब काम जो होता है घर का काम, उससे एकेडमिक स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, हाँ? और खासकर छोटे बच्चों का, उनको तो चाहिए हाथ से बहुत सारा काम करें, तो हाथ से जो कुछ भी कर रहे हैं घर में वो सब उनके लिए फायदेमंद है। और लास्ट चीज़ शायद यही होगी कि हम लोग स्कूल में
हर तरह के प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो छूट ना जाए। जब आप घर पे तरह तरह के काम करेंगे, कपड़े के साथ, फर्नीचर के साथ, किचन में दाल चावल सब्जी के साथ, उन सब से बहुत सारी तरीके हैं जिससे कि अलग अलग टॉपिक्स एक्चुअली सिखाए जा सके, जो हम लोग बहुत उत्सुक हैं कि आपके साथ शेयर करें। और आज जैसे एक दो चीज़ कुछ बता देंगे, इसीलिए ये रखा है, ये चीज़ इसीलिए रखी है, इसको अगर कोई आटा सानेगा फिर बेलेगा तो एक्चुअली उन लोगों को बहुत कुछ शेप साइज वेट मेजर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस नंबर्स, हर तरह का जो हम लोग के टॉपिक एरियाज है ना, उस सब में उनकी जानकारी बढ़ेगी। Just to say very quickly in English, what we are saying is that because in our school we do so many projects and activities, we want to encourage you to have the children do housekeeping kinds of projects and activities by working with you in the kitchen and in the bedroom and in the living room with whatever it is that you are doing. Let them take part, and then we will share with you some concrete ideas about how this is aligned to all the different subjects that they also study. Our final point, JMP, today is I talk about the primary school and you can about the secondary school. That some parents are too concerned about the academic work of their child, by which I mean they will actually do much of the work for the child. Please be very, very, very careful about that. We entreat you to let the child struggle with the academic work themselves. Since we do work on an age level, appropriate level, we want to know how much the child is capable of completing of the work we have given. And sometimes we can't do that because the parent has completed the work. इस चीज़ को हेलीकॉप्टरिंग भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहलाते हैं, जो हमेशा मंडराते रहते हैं बच्चों के इर्द गिर्द कि अब क्या करना है बेचारे को, अब क्या करना है, और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं, उसका हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। अगर कोई चीज़ बनानी है उसको बहुत परफेक्टली बना देते हैं उसके लिए, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। मतलब हेल्प करने को आपको चाहिए कि उसको इनकरेज करिए, उसको बार बार कहिए तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओ, तुम बैठो, ये तुम्हारे जगह है, और क्या चीज़ चाहिए, और हर चीज़ उसके लिए उपलब्ध करें। लेकिन काम उसको खुद करने दीजिए। इसी तरह से हमको समझ में आएगा कि अगर कोई चीज़ उसको अभी नहीं समझ पाया है, किस तरह से उसको फिर से समझानी चाहिए, और उसकी बहुत अच्छी आदत बनेगी पूछने की, कोशिश करने की, अपने ऊपर आत्मनिर्भर। एंड व्हाट डू यू थिंक जयंती, जो बड़े बच्चों के, हाँ, बड़े बच्चों के लिए यही है कि सभी बड़े बच्चे जैसे भी इस एज में आते हैं, एज भी बहुत डिफरेंट होती है कि जब भी थोड़ा सा उनका सब कुछ चेंज हो जाता है, जो कि हमारा छोटे बच्चे हैं उससे थोड़ा सा उनके जैसे ही एज 6, 7, 8 के बच्चे जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह के उनके मन में होते हैं, तो उनको आप हमेशा उस चीज को लेके बदल रहा है, थोड़ा इसको हवा लगा, ऐसा प्लीज मत बोलिए। उनके साथ बैठिए, उनकी चीजों को भी सुनिए और अपने आप को भी महसूस करिए कि हम भी इतने ही उम्र के थे तो कैसे थे। तो यदि उनके साथ हम फ्रेंडशिप बनाएंगे, उन्हें डराएंगे धमकाएंगे नहीं, ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उनको छोड़ देंगे कि हमें उनको ध्यान नहीं देना, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने के साथ भी आपको बैठना है, उनको थोड़ा टाइम देना है, और कभी भी उनको प्रताड़ित करना, डराना, धमकाना कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ना है, ऐसा प्लीज मत करिए, प्रेशर मत बनाइए। तो ऐसे करके बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा। तो फाइनली आप लोगों से यही कहना है, 3-4 पॉइंट्स हम जल्दी से दोहराते हैं। आप लोग बच्चों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहिए कि क्या आपने बहुत अच्छा अपना कुछ बनाया है दिनचर्या, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, उसमें कुछ अगर रूल्स नहीं बनाए हैं तो रूल्स बना लीजिए, उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट कीजिए, तब वो आपको भी देंगे। और जो भी काम है आपका घर का उसको बहुत क्रिएटिवली सोचिए, ये मत सोचिए कि अरे एक बोझ है हमको किसी तरह से करना है, एक्चुअली वो भी एक रिसोर्स है, उसमें भी आप बच्चों के साथ काम करके उनको ये सिखा सकते हैं कि सबको कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, काम करना चाहिए, और उसके अलावा कुछ ठोस चीज़ें भी सिखा सकते हैं जो हम लोग अगली बार